Hello everyone, now again welcome to video lecture class. Today I am going to talk about the topic CCE in teacher education अर्थात सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, अध्यापक शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन. The particular topic related to M.Ed semester 3 paper number 9B in unit 4. यह M.Ed semester 3 के अंतर्गत यूनिट 4 में यानी 9B पेपर के अंतर्गत यह यूनिट 4 में शामिल किया गया है. CCE कहने का तात्पर्य सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जो कि वर्तमान समय के लिए और वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के लिए अत्यंत ही उपयोगी है. इन द प्रेजेंट सिनेरियो इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट and it is helpful for the development of education system. As you know that in 1986 education policy also implemented in the year that was framing in the mode of in the year that is 1988. 1986 में इसका अनुमोदन किया गया था, इसे अच्छी तरह से लागू किया जाए, और 1988 में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इसकी रूपरेखा भी तैयार की गई थी. कहने का तात्पर्य है स्पष्ट कि सीसी वर्तमान समय के लिए सबसे बड़ा आधार है विद्यालयी शिक्षा के लिए. तो अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत कैसे इसको पूरी तरह से लागू किया जाए, पूरी तरह से उसकी जानकारी कैसे दी जाए, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कैसे इसकी जानकारी दी जाए, ताकि ये विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत पूरी तरह से व्यवस्थित करके इसे लागू किया जा सके. यह हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन की एक ऐसी प्रक्रिया दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन स्पेशली इन रेमेडियल and also know about the problem of the students and also the solving attitude, how you have to solve the problem of the student, it is most important and vital. तो जैसा कि आप जाने समझ रहे हैं इस चीज़ को कि सीसी अति महत्वपूर्ण है, मैं इसे और अब आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ. साथ ही साथ इसकी जो कैसे ये क्लासरूम के लिए उपयोगी है उसको भी मैं बताऊँगा. एक क्लासरूम शिक्षक के लिए और बच्चे की जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं जो कि क्लासरूम सिचुएशन में उत्पन्न होता है, उन सभी का भी समाधान. और इसके शुरुआत में मैं इसके उद्देश्य को भी आपको बताऊंगा. तो मैं अब आपको इसे विस्तार से बताने जा रहा हूँ. Now again welcome to 25th video lecture of M.Ed semester 3 paper number 9B secondary and senior secondary education. Now the particular topic continuous and comprehensive evaluation CCE in teacher education. First introduce the particular topic. Education aims at making children capable of becoming responsible, productive and useful members of society. Knowledge, skills and attitudes are built through learning experiences and opportunities created for learners in school. It is in the classroom that learners can analyze and evaluate their experiences, learn to doubt, to question, to investigate and to think independently. Now, school education is the necessary foundation for strengthening human resources that has been deemed central for national development. Since the time of our independence, many committees and commissions persistently emphasized upon the free and compulsory education in our country. Next point, among various measures that have been adopted to expand the provision for realizing the goal of universalizing elementary education, the National Policy of Education had made several recommendations to improve the quality of school education. The recommendations include the child-centered approach, improvement in the quality of education through reforms in the context and the process of education, school facilities, additional teachers, laying down minimum level of learning and emphasis upon the continuous and comprehensive evaluation. Now the objective of schemes are A. To help develop cognitive, psychomotor and affective skills. B. To lay emphasis on thought, process and
de-emphasize memorization. C. To make evaluation an integral part of teaching learning process. D. To use evaluation for improvement of students' achievements and teaching learning strategy on the basis of regular diagnosis followed by remedial instruction. E. To use evaluation as a quality control device to maintain desired standard of performance. F. To determine social utility, desirability, or effectiveness of a program and take appropriate decisions about the learner, the process of learning, and the learning environment. G. To make the process of teaching and learning a learner centered activity. H. To make process more comprehensive in nature. Now, recommendation of national curriculum for elementary and secondary education in reforming evaluation practices. The continuous and comprehensive evaluation was initiated based on the recommendation for reform evaluation practices in school education by National Curriculum for Elementary and Secondary Education Framework 1988. Therefore, it is desirable to examine the viewpoints presented in the framework with respect to evaluation. The framework emphasizes the following. Number one, defining minimum level of learning at all stages of education while evaluating the attainment of children. Second, attaining mastery level in all the competencies. Now, third, broadening the scope of learners' assessment by way of including the assessment of psychomotor skills. 4. Aiming at qualitative improvement in education through valuation. Number 5, using grades instead of marks as feedback mechanism for benefit of teachers, learners, and parents for improving attainment level of students. 6. Using various tools, techniques, and modes of evaluation such as paper, pencil test, oral test, observation, schedule, rating scale, interview, and group evaluation method at different stages. Number 7. Maintain comprehensive student portfolio based on observation and situational test. Now, 8. Reducing undue emphasis on paper pencil test in evaluation process. 9. Using more and more informal means of testing to reduce the anxiety and fear of the examinees. And last, laying more stress on informal and child friendly methods of testing. That is the most 10 important, and other point also, but here only 10 point, that means the most important. Now, concept of continuous and comprehensive evaluation. Evaluation is a process of determining the extent to which the objectives are achieved. It is not only concerned with the appraisal of achievement but also with its improvement. In this context, the NPE 1986 recommended that minimum level of learning be laid down at each stage of primary education and that step be undertaken to ensure that all students achieve this minimum level of learning. The comprehensive evaluation should involve the summative assessment of cognitive abilities as well as assessment of health habits, work habit, cleanliness, cooperation, and other social and personal qualities through simple and manageable means of tools. The comprehensive evaluation not only helps in checking all the standard of performance in both scholastic and co-scholastic area, but also in decision making regarding various aspects of teaching learning process, promoting the student, increasing quality, efficiency, and accountability. The teacher has to select the most appropriate techniques for situation and develop the necessary tools for the same and decide upon the periodicity and timing of evaluation. Now, implementation of continuous and comprehensive evaluation. Number 1, careful examination of the course to be attained by the learner to terms of knowledge, understanding, application, and skill performance. Number 2, knowledge and ability to construct assessment tools for assessing the competencies. Number 3, careful planning of competency based teaching procedures. Number 4, comprehensive evaluation of competencies as well as personality traits and attitudes. Number 5, the maintenance of records. Number 6, requirement of knowledge and skills of evaluation, commitment and assistance to provide remedial teaching on the part of the teacher. Now, how does continuous and comprehensive evaluation help a classroom teacher? Number 1, to identify learning difficulties in mastery certain competencies and
the intensity of such learning difficulties. Number 2, to improve students learning through diagnosis of their performance. Number 3, to plan appropriate remedial measures to enable his student who have learning difficulties in mastery the competency. Number 4, to improve or alter instructional strategy to enhance the quality of teaching. Number 5, to decide upon the selecting of various media and materials as supportive system in mastering the competencies. And last one, to strengthen evaluation procedure itself. Now मैं अब इन सभी चीज़ों को थोड़ा हिंदी में स्पष्ट करूँ। शिक्षक शिक्षा या अध्यापक शिक्षा में सतत और व्यापक मूल्यांकन। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को समाज के जिम्मेदार, उत्पादक और उपयोगी सदस्य बनने में सक्षम बनाना है। विद्यालय में शिक्षार्थियों के लिए बनाए गए अनुभव और अवसरों के माध्यम से ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण का निर्माण किया जाता है। यह कक्षा में है कि शिक्षार्थी अपने अनुभवों का विश्लेषण और मूल्यांकन कर सकते हैं और संदेह करना सीख सकते हैं, जांच कर सकते हैं और स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं। विद्यालयी शिक्षा मानव संसाधन को मजबूत करने के लिए आवश्यक आधार है, जिसे राष्ट्रीय विकास के लिए केंद्रीय माना गया है। हमारी स्वतंत्रता के समय से कई समितियां और आयोगों ने हमारे देश में मुफ्त अनिवार्य शिक्षा पर लगातार जोर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लक्ष्य के लिए प्रावधानों का विस्तार करने के लिए जो विभिन्न उपाय अपनाए गए, उनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई सिफारिशें की थी। सिफारिशों में के संदर्भ में सुधारों के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा की प्रक्रिया, स्कूल सुविधाओं, अतिरिक्त शिक्षकों, सीखने के न्यूनतम स्तर को कम करने और निरंतर और व्यापक मूल्यांकन पर जोर देने के लिए बाल केंद्रित दृष्टिकोण में सुधार शामिल है। योजना के उद्देश्य: ए, संज्ञानात्मक और भावात्मक कौशल विकसित करने में। बी, विचार प्रक्रिया पर जोर देना। सी, मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना। डी, छात्रों को उपलब्धि और शिक्षण में सुधार के लिए शिक्षण रणनीतियाँ। ई, गुणवत्ता नियंत्रण के रूप में मूल्यांकन का उपयोग करने के लिए प्रदर्शन के वांछित मानक बनाए रखें। एफ, एक कार्यकाल की सामाजिक उपयोगिता, वांछनीयता और प्रभावशीलता निर्धारित करने के लिए उचित मूल्यांकन करें। जी, सीखने और सीखने की प्रक्रिया को सीखने के लिए एक केंद्रित गतिविधि बनाना। एच, प्रक्रिया को प्रकृति में अधिक व्यापक बनाने के लिए आकलन कक्षा में और बाहर दोनों स्थितियों और वातावरण की एक पूरी श्रृंखला में किया जाए। नाउ, सुधार अभ्यास में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की सिफारिश है। सतत और व्यापक मूल्यांकन प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम द्वारा स्कूली शिक्षा में मूल्यांकन प्रथाओं में सुधार के लिए सिफारिशों के आधार पर शुरू किया गया था। एक रूपरेखा जो कि 1988 में थी, जो कि निम्नलिखित बातों पर जोर देती है। नंबर 1, बच्चों की प्राप्ति का मूल्यांकन करते हुए शिक्षा के सभी चरणों में सीखने के न्यूनतम स्तर को परिभाषित करना, सभी दक्षताओं में महारत हासिल करना, साइकोमोटर कौशल और सामाजिक भावात्मक विशेषताओं के मूल्यांकन सहित शिक्षार्थियों के आकलन के दायरे को व्यापक बनाना। नंबर 4, मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना। नंबर 5, शिक्षकों, शिक्षार्थियों और छात्रों के लाभ के स्तर को सुधारने के लिए समय पर सुधारात्मक उपाय प्रदान करने वाले माता पिता के फीडबैक तंत्र के बजाय ग्रेड का उपयोग करना। नंबर 6, विभिन्न उपकरणों, तकनीकों और मूल्यांकन के तरीकों का उपयोग करना, जैसे कि पेपर पेंसिल परीक्षण, मौखिक परीक्षण, अवलोकन कार्यक्रम में व्यक्तिगत और समूह मूल्यांकन के तरीके पर जोर देना। नंबर 7, अवलोकन और स्थितिजन्य परीक्षणों के आधार पर व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया में पेपर पेंसिल परीक्षणों पर अनुचित उपयोग को कम करना। परीक्षार्थियों की चिंता और भय को कम करने के लिए परीक्षणों के अधिक से अधिक अनौपचारिक साधनों का उपयोग करना। नंबर 9, परीक्षण के अनौपचारिक और बच्चे का अनुकूल तरीकों पर अधिक तनाव देना, अनुकूल तरीकों पर। और नंबर 10, शैक्षिक क्षेत्रों जैसे कार्य, अनुभव, कला, शिक्षा और शारीरिक शिक्षा से संबंधित कौशल के बारे में सबूतों की रिकॉर्डिंग करना। सतत और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा। मूल्यांकन उद्देश्यों को प्राप्त करने की सीमा को निर्धारित करने की एक प्रक्रिया है। यह न केवल उपलब्धि के मूल्यांकन से संबंधित है, बल्कि इसके सुधार के साथ भी संबंधित है। इस संदर्भ में एनपीई 1986 ने सिफारिश की
प्राथमिक शिक्षा के प्रत्येक चरण में न्यूनतम स्तर की पढ़ाई रखी जाए और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाए कि सभी छात्र सीखने के इन न्यूनतम स्तरों को प्राप्त करें। नेक्स्ट पॉइंट, व्यापक मूल्यांकन में संज्ञानात्मक क्षमताओं की योगात्मक मूल्यांकन के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी आदतों, कार्य की आदतों, स्वच्छता, सहयोग और अन्य सामाजिक और व्यक्तिगत गुणों का मूल्यांकन सरल और प्रबंधनीय साधनों के माध्यम से होना चाहिए। व्यापक मूल्यांकन न केवल शैक्षिक यानी स्कॉलस्टिक जिसको बोलते हैं और को स्कॉलस्टिक यानी सहशैक्षिक दोनों क्षेत्रों में प्रदर्शन के सभी मानकों की जांच करने में मदद करता है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं के बारे में निर्णय लेने, छात्रों को बढ़ावा देने, गुणवत्ता, दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने में भी मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन कुछ पारंपरिक लोगों के अलावा कई मूल्यांकन तकनीकों और उपकरणों के उपयोग की आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता है क्योंकि माइन्यूट यानी बहुत छोटी सी वृद्धि के विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों को कुछ तकनीकों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षक को एक स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक का चयन करना होगा और उसी के लिए आवश्यक उपकरण विकसित करना होगा और मूल्यांकन की आवधिकता और समय पर निर्णय लेना होगा, यानी मूल्यांकन की अवधि और समय पर निर्णय लेना होगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन का कार्यान्वयन। नंबर 1, पाठ्यक्रम की सावधानीपूर्वक परीक्षा और ज्ञान समझ आवेदन यानी विश्लेषण, संश्लेषण, उच्च ग्रेड के लिए मूल्यांकन और कौशल प्रदर्शन के मामले में शिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त की जाने वाली दक्षताओं की विशिष्टता। नंबर 2, योग्यता का आकलन करने के लिए उपयुक्त मूल्यांकन उपकरण बनाने के लिए ज्ञान और क्षमता। नंबर 3, योग्यता आधारित शिक्षण प्रक्रियाओं की सावधानीपूर्वक योजना। शिक्षण और मूल्यांकन के बीच एकरूपता होनी चाहिए जिसके बिना मूल्यांकन विकृत हो जाएगा। नंबर 4, दक्षताओं के व्यापक मूल्यांकन के साथ साथ व्यक्तित्व लक्षण और दृष्टिकोण। नंबर 5, अभिलेखों का रखरखाव। नंबर 6, शिक्षक की ओर से उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने के लिए ज्ञान, मूल्यांकन, प्रतिबद्धता और सहायता के कौशल की आवश्यकता। नाउ, सतत और व्यापक मूल्यांकन एक कक्षा शिक्षक की मदद कैसे करता है, इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। नंबर 1, कुछ दक्षताओं में महारत हासिल करने में सीखने की कठिनाई और ऐसी सीखने की कठिनाइयों की तीव्रता की पहचान करना। नंबर 1 पॉइंट है ये। नंबर 2, अपने प्रदर्शन के निदान के माध्यम से छात्रों के सीखने में सुधार करना। नंबर 3, सक्षम छात्रों को सक्षम करने के लिए उपयुक्त उपचारात्मक उपायों की योजना बनाने के लिए जिनमें दक्षता हासिल करने में कठिनाई हो उसके बारे में विचार करना। शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अनुदेशात्मक रणनीतियों में सुधार या परिवर्तन करना। सक्षमताओं में महारत हासिल करने यानी ज्ञान वृद्धि करने में सहायक प्रणाली के रूप में विभिन्न मीडिया और सामग्रियों के चयन पर निर्णय लेना। और लास्ट में नंबर 6, मूल्यांकन प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए भी यह मददगार होता है। इस प्रकार से मैंने सीसी यानी अध्यापक शिक्षा यानी शिक्षक शिक्षा में कैसे उपयोगी है, शिक्षक इसे कैसे सीखकर क्लासरूम में इसका प्रयोग कर सकते हैं और राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति 1986 थी उसमें क्या अनुशंसाएँ की गई थी, 1988 के अनुसार क्या क्या चीज़ों को अनुमोदन किया गया, सिफारिशें क्या थी, उन सभी चीज़ों को मैंने विस्तार से बताया और आप इसको ध्यान से सुने, समझें और इसका नोट्स तैयार करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।